بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات، جناب امیر مقام صاحب مشیر حکومت پاکستان، جناب احد خان چیمہ صاحب مشیر حکومت پاکستان، جناب کیپٹن صفدر صاحب، محترم چیف سیکرٹری کے پی، آئی جی پولیس کے پی، اور توڑ گڑھ کے میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم، اور آپ کا شکریہ، بہت شکریہ کہ آج صبح یہاں پہ جب میں وہاں سے چلا تو پتہ چلا کہ بڑی بارش ہوئی، طوفانی بارش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات منظور تھی، تو یہاں پر آج سے آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ جو بزرگ اور بھائی تشریف فرمائے ہیں، آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے لیے آپ نے ہجرت بھی برداشت کی، قربانیاں بھی دیں، تربیلا ڈیم کے حوالے سے آپ نے اپنی زمینیں بھی پاکستان کے لیے قربان کر دی۔ یہ بہت بڑی یہ خدمت ہے پاکستان کے لیے آپ کی، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان بنتے وقت آپ کے بزرگوں نے حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں، اس تحریک میں آپ کے بزرگوں کی بہت شاندار کاوشیں شامل ہیں، قربانیاں شامل ہیں، خون شامل ہے، تو میں آج اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ میں ان بھائیوں اور بزرگوں کے سامنے ہوں جن کے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے بہت عظیم قربانیاں دی ہیں۔ کے پی پاکستان کا ایک خوبصورت ترین صوبہ ہے، اور یہ سارا علاقہ ہزارہ ڈویژن ہو، مالاکنڈ ڈویژن ہو، یا دوسرے علاقے ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پہاڑ دیے ہیں، خوبصورت لوگ دیے ہیں، بڑے جری
بہادر قوم ہے یہ کے پی کی، اور دریا دیے ہیں آپ کو، بہت شاندار زمینیں دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 75 سال میں پوری دل جمی کے ساتھ اور پوری خلوص دل کے ساتھ اگر 75 سال میں کاوش اور کوششیں کی جاتی تو پاکستان کے سمیت کے پی بہت ترقی یافتہ صوبہ ہو گیا ہوتا. پاکستان اقوام عالم میں بہت ایک ترقی یافتہ خوشحال ملک ثابت ہوتا. بدقسمتی ہے کہ ماسوائے بہت مختصر عرصوں میں، جن میں نواز شریف کا سنہرا دور شامل ہے اور چند دوسرے بہت مختصر جو پاکستان کی سیاسی قیادت کو موقع ملے. بدقسمتی سے ہم نے من حیث القوم اپنے ان بزرگوں کا، ان شہیدوں کا احترام نہ کیا جنہوں نے پاکستان کی آبیاری کے لیے اپنا خون دیا. لاکھوں لوگ گھرانے ہندوستان کو چھوڑ کر اس خطے کی طرف آئے. یہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے کہ ایک ایسا ملک، خداداد ملک پاکستان ہوگا جہاں پر آزادی کے ساتھ ہم رہیں گے اور ہر فرد کو اس کی محنت، اس کے قابلیت کے مطابق اس کو معاشرے میں مقام ملے گا. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور ہوا کیا؟ سفارش اور اقربا پروری، رشوت، یہ سکہ رائج الوقت بن گیا. اور آج میں آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ہمارے وہ عظیم بزرگ، وہ لاکھوں شہید، ان کی روحیں آج قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. مگر میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جو وقت گزر گیا اس کے اوپر ماتم اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ پوری اس ملک کی سیاسی قیادت جو کہ پاکستان
پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے، اس ملک کی تمام دوسرے ادارے اور ان کے سربراہ، ہم سب مل کر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدا گواہ ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی پہاڑ سمندر رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ شرط اول یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اس کا حکم ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت قائد اعظم نے ہمیں یہی سکھایا، قرآن کریم کے یہی احکامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھیں، اس کا یہی پیغام ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا یہی پیغام ہے۔ تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، عملی تعبیر کے لیے ایک چیز چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور محنت، امانت اور دیانت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو پھر قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم دوسروں کو قرض دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آج جہاں پر جب میں اتر رہا تھا اپنے ہیلی کاپٹر میں، تو چاروں طرف نظر دوڑائی، سرسبز پہاڑ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر مکانات بنے ہوئے ہیں، اور دریائے سندھ یہاں سے گزر رہا ہے۔ تربیلا ڈیم بھی میں نے دیکھا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نعمتیں نہیں عطا کی، ہر چیز مہیا کی ہے۔ آپ جیسے ایک بڑے بہادر بزرگ اور جوان ہیں، پورے پاکستان میں پھیلے ہیں۔ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، فوجی ہیں، اور اب انجینئرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، ریاضی کے، تاریخ کے ماہر ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں، کمی صرف ایک چیز کی ہے، وہ ہے کام کرنے کا ایک حوصلہ اور جذبہ۔ بس وہ اگر آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ پاکستان انشاءاللہ چھلانگے مارتا ہوا دنیا کی دوسری جو ممالک ان سے آگے نکل جائے گا۔ میرا یہ ایمان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شعر کو میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اور نہیں یہ شان خودداری، اور نہیں یہ شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بھی رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اور پھر یہ شعر بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے اس خوبصورت علاقے میں اور بڑے بہادر لوگوں کے اس ہجوم میں، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے
चश्मा यहीं से निकलेगा। तो बुजुर्गों और नौजवान साथियों और सरकारी अफसरों, आप सब एक कबीले के हिस्से हैं, एक कौम हैं। पश्तून हों, पंजाबी हों, सिंधी हों, बलोच हों और दूसरी जो हमारे इस मुल्क में आबाद कौमें हैं, वो सब हों, सब हम एक खुदा और एक रसूल और एक किताब को मानने वाले हैं। उसके लिए आप जाने निछावर करने के लिए तैयार हैं। देखिए किस तरह अल्लाह ताला की किताब की बेहुरमती जिस मुल्क स्वीडन में हुई, पूरी मिल्लत इस्लामिया आज शदीद गुस्से की लहर दौड़ रही है और इंतहाई सब्र के साथ वो अपने पुरअमन एहतजाज पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक में वो कर रहे हैं जो उनका हक है, और पूरी कुव्वत के साथ इस कभी हरकत की मजम्मत करना हमारा फर्ज है बतौर मुसलमान के। आज कौमी असम्बली का भी इजलास वहाँ पर बुलाया है, जॉइंट अपने जो पार्लियामेंट की जो मीटिंग आज वो हो रही है, वहाँ पर इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम कुरान करीम की ये बेहुरमती किसी सूरत हमें बर्दाश्त नहीं, या वो मुल्क के अवाम वो सीधे हो जाएं, वगरना पूरी मिल्लत इस्लामिया सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी और किसी को ये मजमूम हरकत करने की इजाज़त नहीं देगी बिल्कुल। तो मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, मैं आज अब यहाँ पर जो आपके तरक्याती मंसूबों के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे आज यहाँ पर पता लगा कि ये पुल ना होने की वजह से 250 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है लोगों को। अब बताइए, मैं अपनी भी इस बेखबरी की माजूर चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि 75 साल गुजर गए, चलो 75 साल ना सही, पिछले 15, 20, 25, 30 साल में ये पुल बनना चाहिए था ताकि 250 किलोमीटर जो कोई मेरा ख्याल कम से कम 5 घंटे की मुसाफत होगी, पेट्रोल खर्च होता होगा, पैसे वक्त ज़ाया होता होगा। कितना वक्त ज़ाया हुआ इन सालों और इन दिहाइयों में जिसकी कोई कीमत का अंदाज़ा नहीं। और फिर वक्त तो अंग्रेजी का वो मुहावरा है कि टाइम इज़ मनी, वक्त जो है वो दौलत है। अगर आप वक्त को अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो आप मुल्क को आप सोना बना सकते हैं। तो ये 250 किलोमीटर का जो फासला, अगर ये पुल बन जाए तो सिर्फ 1 किलोमीटर रह जाता है। मैंने इनको कहा है कि जिस ठेकेदार को ये दें वो 24 घंटे काम करे। इन्होंने कहा कि 3 साल में बनेगा, मैंने कहा नहीं, 1 साल में बनना चाहिए। और उसके लिए वफाकी हुकूमत पूरी मावनत के लिए तैयार होगी। मैं खुद आपसे वादा करता हूँ कि जितनी हमारी हुकूमत का वक्त है मैं इनसे मशावरत में रहूँगा, और मुझसे वादा किया है कि हम इंशाअल्लाह बेहतरीन ठेकेदार लेके आएंगे जो 24 घंटे काम करके ये 3 साल के बजाय 1 साल में इसको मुकम्मल करेगा। तो इस इलाके के लोगों की कितनी भलाई होगी और कितना यहाँ पर खुशहाली का एक नया दौर होगा। और मैं जब 1 साल की बात करता हूँ तो हवा में बात नहीं करता। मेरा 10 साल का अपना हकीर तजर्बा है पंजाब में। बेशुमार इस तरह के मंसूबे जो कि माजी में कई साल लग जाते थे, वो चंद महीनों में मुकम्मल हुए। तो इसलिए आप यकीन रखें कि अगर ये इंतज़ामिया पूरी दिलजमी से ये काम करेगी तो इंशाअल्लाह ये मंसूबा 3 साल में नहीं 1 साल में बनेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ने चाहा, उस अगर खुदा ताला को मंजूर हुआ आपकी दुआओं से, तो फिर इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया अगले इंतखाबात के नतीजे में, तो इसका इब्तिदा भी यहाँ पर आके आपके हाथों से करवाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, इसके अलावा ज़िला तोड़गर और बुनेर के दरमियान सड़क का भी एक मंसूबा, उसका मैंने आज संग बुनियाद रखा है। और एक सुरंग का भी, जो बुनेर और कड़ाकर जो सुरंग है जो सवात को मिलाती है, उसका भी
संग बुनियाद रखा है। ये तीनों मंसूबे मिला के तकरीबन 17-18 अरब रुपए के ये मंसूबे हैं। कैप्टन सफदर साहब ने और अमीर मकाम ने अपनी यहाँ पर अभी अपनी तकारीर में मज़ीद यहाँ पे मुतालबात रखे, लेकिन जो बैनुल ज़िले जो मंसूबे हैं उनकी अपनी अहमियत, लेकिन ज़िले के अंदर आवाम के, कस्बे और शहर के अंदर आवाम के मसाइल अगर उनके ऊपर तवज्जो ना दी जाए तो फिर बड़े मंसूबे जिसका ज़्यादा वसी दायरा होता है उसका फ़ायदा तो है, लेकिन सबसे पहले अपने घर को अपना ठीक करना, सीधा करना, ये आपका और मेरा, हम सब का एक मिली फ़र्ज़ है। इस हवाले से जो यहाँ पर डिमांड्स पेश की गई, यकीनन वो सभी की सभी इंतहाई जायज़ हैं और होनी चाहिए, लेकिन चंद का मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मज़ीद इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। एक तो दानिश स्कूल का मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ, दानिश स्कूल का इंशाअल्लाह। दानिश स्कूल का इसकी बुनियाद मैंने पंजाब में रखी थी 2008-10 से, और वहाँ पर दर्जनों दानिश स्कूल बनाए। और वहाँ पर कौन थे? यतीम बच्चियाँ, यतीम बच्चे, गरीब घराने के बच्चियाँ और बच्चे जिनके पास वो बहुत ज़हीन, बहुत फ़तीन, मगर उनके पास पैसे नहीं थे उनके माँ बाप के पास कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। और उमरा के बच्चे इस मुल्क में, चाहे पेशावर है, चाहे कराची है, लाहौर है, कोयटा है, वो बड़े बड़े आला स्कूलों में उनको दाखिले मिलते हैं, बड़ी बड़ी आला यूनिवर्सिटियों में, इसलिए उनके पास हलाल के पैसे हैं या दूसरे वसाइल से पैसे हैं। और जो गरीब इस मुल्क में करोड़ों बसते हैं, जो अजीम पाकिस्तानी हैं, फजर के वक्त अल्लाह ताला के हजूर झुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आजिज़ी के साथ दुआ करते हैं रिज़्क़ हलाल के लिए, वो सारा दिन मेहनत करने के बावजूद भी अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, बीमार बेटी का इलाज करने के लिए उनको फैसला करना पड़ता है कि ये 300 रुपये में से मैं क्या करूँगा, मैं दवाई ला के दूँ बीमार बच्ची के लिए या बेटे या बेटी की किताब लेके आऊँ। तो दानिश स्कूल हमने बनवाए थे पंजाब में। मुझे याद है एक बच्ची, वो रहीम यार खान के दानिश स्कूल की बच्ची थी, उसको जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे पास वो बेटी आई मेरे पास, तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने दानिश स्कूल बनाया। मैंने पूछा, बेटी आप के माँ बाप कहाँ हैं? उनका कि मेरी जब मैं छोटी थी तो मेरे जो वालदा थी वो इस दुनिया से कूच कर गई। मेरे वालिद थे वो कमाते थे। तो कहने लगी कि एक दिन मैं 6ठी क्लास में या 5वीं क्लास में थी तो मेरी टीचर मेरे पास आई, उसने कहा कि अपना जल्दी आओ, हस्पताल जाना है। मैंने कहा खैर है? कहने लगे कि तुम्हारे वालिद कुछ बीमार हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कहने लगे कि खादमे आला मैं जब अस्पताल पहुंची तो मेरे वालिद से मैं बात ना कर सकी, वो भी अल्लाह के प्यारे हो गए और मैं यतीम हो गई। मेरी 2 बहनें वो भी यतीम हो गई, उससे छोटी। तो उस बच्ची ने कहा कि जब ये दानिश स्कूल बना तो आज ये दानिश स्कूल ये मेरे लिए छत का काम भी करती है, बेहतरीन तालीम है। और मैं रात को अपने वालिदैन से ख्वाब में बात करती हूँ। मेरे वालिद मुझे कहा करते थे कि तुमने डॉक्टर बनना है, तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ, आज ये दानिश स्कूल मुझे यकीन है कि मैं डॉक्टर बनूंगी और अपने बाप की बात की लाज रखूंगी। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये आपका हक है, ये कोई आपके ऊपर एहसान नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको आला तालीम उनके बच्चों को मिले, उनको दवाई मिले, उनको इलाज मिले। हमने 75 साल ज़ाया किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस मुल्क की तरक्की की दौड़ में फिलफौर उसमें जुट जाएं, मगर ना आने वाली नस्लें माफ़ करेंगी, ना आप माफ़ करेंगे, ना खुदा माफ़ करेगा। मेरा ये ईमान है बिल्कुल। इसलिए हमें इंशाअल्लाह इस मंसूबे के ऊपर काम करना है मिलकर, चाहे वो सियासी क़यादत है, चाहे वो अदलिया है या अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो वज़ीर आज़म है या चीफ जस्टिस है या वो सिपा सलार है, सबको मिलकर पाकिस्तान की इस दौड़ में आगे बढ़ना होगा अवाम के साथ।
वगरना आप माफ नहीं करेंगे हमें। मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं जानता हूं इस बात को। मैं इस दश्त में अब नवाज शरीफ की क़यादत में 35 साल में हूं, और नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान में जो तरक्की का दौर जो 2013 में शुरू हुआ और 2017-18 में वो ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं कि पाकिस्तान तबाही और मुकम्मल तबाही के दहाने पहुंच गया। आज हमने बड़ी मुश्किल से हमने IMF का प्रोग्राम किया, और IMF के जो प्रोग्राम है ये कोई मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। उस डिफॉल्ट के हवाले से क्या वजूहात थी मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं। लेकिन पूरी कोशिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह IMF का जो हमारा जो पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अब 12 तारीख को IMF की बोर्ड की मीटिंग है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम वहाँ से जब मंजूर होगा तो पाकिस्तान पर इंशाअल्लाह जो डिफ़ॉल्ट जो हमारे दुश्मन थे अंदर बैठे और बाहर, जो डिफ़ॉल्ट के लिए अपना बड़ी दिन रात वो दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह उनकी दुआओं को दफन कर दिया जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ थे। इंशाअल्लाह ये IMF का मंसूबा होगा। हम IMF की MD की भी, उनकी टीम की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इसहाक डार साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनकी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन दोस्त ममालिक का, चीन का, सऊदी अरेबिया का, UAE का, कतर, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अरबों डॉलर हमें इस मौके के ऊपर खड़े होने के लिए दिए। इसका मैं अगर आपका तफसील से तस्करा करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिपा सलार का, पाकिस्तान का, आसिम मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की। सऊदी अरेबिया से, UAE से 3 अरब डॉलर लेके दिए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि मुल्क इस तरह चलते हैं जब आप यकजां दो गालिब हों। वो शेर है ना इकबाल का कि वो फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। यानी एक फर्द जो है वो खानदान एक इकट्ठा हो, 4 बेटे, 2 भाई, बीवी, बेटियां, तो वो उसकी जो अपना इज्जत है, उसका जो एहतराम है, उसका जो रोब-दाब है, वो एक फर्द के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो इकबाल कहता है बुजुर्गों सुन लें, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, यानी मिल्लत का जो रब्त है, मिल्लत का जो एक है, फर्द जो है उससे कायम है, अकेला कुछ नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। दरिया में ये जो दरिया सिंध है, इसमें जो मौज है दरिया के सेंटर में, कितनी खौफनाक है। जब वो किनारे लगती है, चाहे इस तरफ या उस तरफ, झाग बन जाती है। तो मेरे बुजुर्गों, बस यही कुव्वत जो है इत्तेहाद की, वो हमें इंशाल्लाह आगे लेके जाएगी। तो दानिश स्कूल का मैंने आपको इंशाल्लाह यह हकीर तोहफा पेश किया है। और इसके अलावा बिजली के हवाले से कहते काला ढाका में बिजली नहीं है यहाँ पे, तो बस फिर मैं इंशाल्लाह काला ढाका में जो बिजली जो है उसको वो आपको मैं लेके दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह काला ढाका में बिजली फिल फौर आएगी। मैं जाते ही इस्लामाबाद में इस मंसूबे के ऊपर मैं काम करूँगा और इंशाल्लाह मैं आपको दिलवाऊँगा। आखिरी बात एक कॉलेज इस तरफ और एक कॉलेज इस तरफ, उसका मैं ऐलान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश खत्म रखे। पाकिस्तान कायदे आज़म, आवाज नहीं आई मुझे, पाकिस्तान कायदे आज़म नवाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मकामी क़बाइली नुमाइंदीन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तोरघर के मशीरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। नुमाइंदीन और मशीरान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वालों की औलाद से मुखातिब होकर खुश हूँ। मुल्क के इस खित्ते में खूबसूरत पहाड़ और प्यारे अवाम हैं।